Hello Unstoppable, welcome back to today's super duper and fantastic practice and learning session of Unstoppable Academy। आज की इस धमाकेदार क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। So are you guys ready? Yes sir. Yes or no? Yes sir. Yes sir. I am the best. I'm the best. I can do. I can do. If I can do, What I do. so can you. So can you. I am the best. I'm the best. I can do. I can do. If I can do, If I can do. so can you. So can you. I'm unstoppable. I'm unstoppable. I'm unstoppable. I'm unstoppable. I'm unstoppable. I'm unstoppable. Okay, right now get ready. I'm gonna be asking questions again quickly, which means as soon as possible, as quick as possible, and you guys have to answer them. So are you guys ready? Yes sir. Okay, मैं तैयार हूँ। I'm ready. मैं जाने के लिए तैयार हूँ। I'm ready to go. तुम कहाँ जाओगे? Where will you go? तुम कैसे जाओगे? How will you go? मुझे पता है कहाँ जाना है। I know where to go. I know where to go. Simple. I know where to go. मुझे पता है कैसे जाना है। I know how to go. मुझे पता है कब जाना है। I know where to go. मुझे जाना चाहिए। I should go. मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए। I should practice. मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए था। I should have practice. मैं जानता हूँ। I know. मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। I know about you. I know about you. मैं तुम्हारे बारे में जानता था। I know about you. I knew about you. मैं तुम्हारे बारे में जानूंगा। I will know about you. मुझे जाना है। I have to go. मुझे जाना है। I have to go. मुझे जाना था। I have to go. मुझे जाना होगा। I have to go. मैं जा सकता हूँ। I can go. मैं जाया करता था। I used to go. मुझे जाना चाहिए। I can go. तुम्हें कहाँ जाना है? Where should you go? Where do you have to go? अच्छा, थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, कहीं ऐसा ना हो कि सर कुछ कहेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अरे ऐसे कुछ मत करना। ओके, मैं जाया करता था। I used to go. मैं सोया करता था। मैं खेल रहा हूँ। I am playing. तुम खेल रहे हो। तुम खेल सकते हो। तुम खेला करते थे। तुम्हें खेलना है। You have played. तुम्हें खेलना था। You have to play. तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? तुम कैसे जा रहे हो? How are you going? कौन जा रहा है? Who is going? कौन खेलता है? Who is playing? कौन खेलता है? Who is playing? कौन खेलता है? Who is playing? बहुत बढ़िया। कौन 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 खेलता है? Who plays? कौन खेलता था? Who plays? Who played? कौन खेलेगा? Who will play? तुम कहाँ जाया करते थे? Where did you used to go? Where did you used to go? क्या तुम इंग्लिश बोला करते थे? Did you used to sing English? क्या तुम झूला झूला करते थे? Did you used to Did you used to swing? Swing मतलब होता है झूला झूलना। Did you used to swing? ओके, क्या तुम्हारे पास पैसा है? Do you have money? क्या तुम जानते हो? Do you know? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? Do you know who I am? Do you know who I am? क्या तुम वहाँ जा सकते हो? Can you go there? Can you go there? क्या तुम मुझे वहाँ जाने दे सकते हो? Can you go there? Can you let me go there? क्या तुम दौड़ सकते हो? Can you run? और क्या तुम मुझे दौड़ने दे सकते हो? मैं तुमसे दौड़वाता हूँ। I make you run. मैं तुमसे काम करवाता हूँ। I make you run. I make you do the work या तो I make you work। ओके, मैं तुमसे लिखवाता हूँ। I make you write. मैं तुमसे बुलवाता हूँ। I make you speak. I make you speak। मैं तुमसे दौड़वाता हूँ। I make you run. मैं तुमसे खाना बनवाता हूँ। I make you cook. I make you cook food या तो I make you make food, वो भी हो जाएगा। वहाँ पर सेकंड वाले make का मतलब खाना बनाने के लिए आया है। ओके, मुझे पता है कहाँ जाना है। I know where to go. मुझे पता है जो कुछ भी तुम्हारे पास है। I know. I know। What to go. अरे बाप रे, ऐसे नहीं बोला है। मुझे पता है जो कुछ भी तुम्हारे पास है। I know whatever you have। अगर मैं बोलूँ मुझे पता है जो तुम्हारे पास है, आप बोलोगे I know what you have। लेकिन मुझे पता है जो कुछ भी तुम्हारे पास है, I know whatever you have। मुझे पता है जहाँ कहीं भी तुम जाते हो, I know where you go. I know wherever you go। मुझे पता है जब कभी भी तुम जाते हो, I know where. I know whenever, जब कभी भी, whenever, जहाँ कहीं भी, wherever, और जो कुछ भी, whatever। क्लियर है ना? इस तरीके से आपको मूव करना है। मुझे पता है जब कभी भी तुम खेलते हो, I know whenever you play. I know whenever you play। मुझे पता है जब कभी भी तुम सोते हो, I know whenever you play. I know whenever you sleep। मुझे मत बताओ, No whenever. don't tell me। शांत बैठो, Keep quiet. sit quiet। ओके, मुझे मत बताओ, sit quietly भी बोल सकते हो। ओके, तो keep quiet है या तो sit quiet, वो भी that is enough for that। ओके, sit quiet, शांत बैठो। वहाँ जाओ, Go there. वहाँ मत जाओ। क्या तुम वहाँ जा सकते हो? Can you go there? मैं कैसे जाऊँ? How can you go there? मैं कैसे जाऊँ? How can you go? मैं कैसे जाऊँ? How shall I? हाउ शैल आई गो, ये तो हाउ डू आई गो, ये तो हाउ शुड आई गो। शैल, डू और मेले शैल और डू का यूज होता है, तो इनका यूज कर सकते हो और शुड का भी यूज कर सकते हो इन सम केसेस। क्लियर है ना? तो मैं कैसे जाऊँ? हाउ शुड आई गो, हाउ डू आई गो, हाउ शैल आई गो। क्या मैं जाऊँ? Can I go? क्या मैं जाऊँ? Shall I go? क्या मैं प्रैक्टिस करूँ? Shall I practice? क्या मैं डांस करूँ? Do I dance? शैल आई डांस या तो डू आई डांस। क्या मैं नाचूँ? Shall I dance? क्या वह नाचे? Does he dance? शैल ही डांस या तो डज ही डांस। बाय द वे दूसरों को कंफ्यूज कर देते हो यार। ओके, लेट्स मूव फर्दर। क्या तुम्हारे पास पैसा है? Do you have money? क्या तुम्हारे पास पैसा था? Did you have money? बारिश हो रही है, Is it fair? क्या तुम वहाँ जा सकते हो? Can you go there? मैं वहाँ जा सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता वहाँ कैसे जाना है। I can go there.
आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता बट वहाँ कैसे जाना है। तुम्हें वहाँ बाइसिकल से जाना है। यू हैव टू गो देयर बाई बाइसिकल। मेरे पास बाइसिकल नहीं है, इसीलिए मैं बाइसिकल से नहीं जा सकता। दैट्स वाई आई कांट गो बाइसिकल। तुम्हारे पास एक बाइसिकल थी। जहां तक मुझे पता है तुम्हारे पास एक बाइसिकल थी। एज फॉर एज आई नो यू हैड अ बाइसिकल। जब तुम्हारे पास बाइसिकल थी, अब तुम्हारे पास, जब पहले तुम्हारे पास बाइसिकल थी, अब तुम्हारे पास बाइसिकल क्यों नहीं है? When you had bicycle earlier, earlier मतलब होता है पहले। When you had a bicycle earlier, जब पहले तुम्हारे पास बाइसिकल थी, अब तुम्हारे पास बाइसिकल क्यों नहीं है? अब तुम्हारे पास बाइसिकल क्यों नहीं है? Why don't you have a bicycle now? Why don't you have a bicycle now? मेरे पास एक बाइसिकल थी, लेकिन मेरी बाइसिकल चोरी कर ली गई। I had a bicycle, लेकिन मेरी 2 दिन पहले मेरी बाइसिकल चोरी कर ली गई। 2 दिन पहले, अरे 2 days ago, 2 days ago, अरे आफ्टर मतलब बाद में होता है, पहले की बात करो। बिफोर 2 days तो आफ्टर 2 days ago। लिसन, जब ऐसे दिन की बात करें ना, महीने, दिन, वीक्स या तो आवर्स, वहाँ पर आगो लगा देना। 2 days ago, 2 hours ago, 3 days ago, 4 months ago, ऐसे AGO। ओके, तो सेकंड से लेकर सेंचुरी तक, सेकंड से लेकर सेंचुरी तक के लिए अगर आपको बताना है पहले के लिए, तो पहले आगो लगा दो। जैसे 2 घंटे पहले 2 hours ago, 3 घंटे पहले 3 hours ago, 4 दिन पहले 4 days ago, 4 सप्ताह पहले 4 weeks ago, हाँ 1 hour ago, हाँ बिल्कुल कह सकते हो 1 hour ago। सर 2 सेकंड की बात यहाँ पर कर रहे हैं, वो भी 2 मतलब सेकंड के लिए है, तो सेकंड से लेकर सेंचुरी तक। ओके, मिली सेकंड से लेकर सेंचुरी बात करते रहिए, जो भी आएगा। जैसे 4 साल पहले 4 years ago, इज दैट क्लियर? आगे आप मूव कर सकते हो। तो 2 महीने पहले मेरी बाइसिकल चोरी कर ली गई। 2 months ago मेरी बाइसिकल चोरी कर ली गई। माई बाइसिकल, बहुत बढ़िया, मेरी बाइसिकल चोरी कर ली गई। अरे बाबा, पैसिव वॉइस का है, क्या आपने चुराया कि किसी के दूसरे के द्वारा चोरी कर ली गई? एक्टिव का संडे से कि पैसिव का? पहले ये बताओ, मेरी बाइसिकल चोरी कर ली गई। कम ऑन बताओ, कैसे पहचानूं कोई संडे से एक्टिव है कि पैसिव का है? कैसे पहचानोगे कि कोई संडे से एक्टिव है कि पैसिव है? जिसमें सब्जेक्ट ना हो, तो जिसमें हम सब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। एक्टिव पे आप सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हो, सब्जेक्ट काम करने वाला होता है। पैसिव में जरूरत नहीं है। मेरी बाइसिकल चोरी कर ली गई काफ़ी है, कौन चोरी करा नहीं पता ना, तो उससे ज़्यादा मतलब ही नहीं है। और पैसिव वॉइस में आपके ऑब्जेक्ट की मेनली प्रधानता होती है, उसका वर्चस्व होता है। बहुत बड़े अच्छे हिंदी के वर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश के वर्ड्स नहीं आ रहे हैं। ओके, उसकी चलती है इन सिंपल वर्ड्स। क्लियर है ना? तो पैसिव में आपकी ऑब्जेक्ट, अब अगर मैं बोलूँ मेरी बाइसिकल चोरी कर ली गई, सब्जेक्ट है? नहीं है। क्या है? मेरी बाइसिकल चोरी कर ली गई, नहीं है ना? तो अब किसी के द्वारा चोरी कर ली गई, तो वहाँ पर जाएगा किस में जाएगा? पैसिव में। बाय द वे, मेरी बाइसिकल चोरी कर ली गई, सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा? मेरी बाइसिकल चोरी कर ली गई। मेरी बाइसिकल, गॉट इट, मेरी बाइसिकल चोरी कर ली गई। ता है आए तो प्रेजेंट का है, तात है तो आइए आए तो पास्ट का है। मेरी बाइसिकल चोरी कर ली, चोरी कर ली गई। यहाँ पर देखिए लास्ट में ई आया है। अब वैसे तो गा मतलब वो जाना की सेंस में आया, तो जा किसी में भी आ जाए वो पैसिव वॉइस का होता है, तो फिर मेनली हो गया गई, विच मीन्स माई बाइसिकल वॉज स्टोलन। माई बाइसिकल वॉज स्टोलन, मेरी बाइसिकल चोरी कर ली गई। माई बाइसिकल वॉज स्टोलन, दिस इज दैट सिंपल। आगे मूव करते हैं। ओके, 2 महीने पहले मेरी बाइसिकल चोरी कर ली गई। 2 months ago, 2 months ago, 2 महीने पहले माई बाइसिकल वॉज स्टोलन, मेरी बाइसिकल चोरी कर ली गई। जिस दिन तुम्हारी बाइसिकल चोरी हुई थी, अच्छे सुना, जिस दिन तुम्हारी बाइसिकल चोरी हुई थी, द डे, सिंपल, जिस दिन मतलब दैट डे बोल दीजिए, दैट डे, ये तो द डे दोनों काफी हैं। तो जिस दिन तुम्हारी बाइसिकल चोरी हुई थी, अरे द डे स्पेशल रहेगा, द डे योर साइकिल वॉज स्टोलन, द डे व्हेन, ओके, जिस दिन जब तुम्हारी बाइसिकल चोरी हुई थी। सो द डे व्हेन योर बाइसिकल वॉज स्टोलन,
तो जिस दिन तुम्हारी बाइसिकल चोरी हुई थी तुम कहाँ थे? वेयर वर यू द डे व्हेन योर बाइसिकल वॉज स्टोलन, तुम कहाँ थे? मैं अपने घर पे ही था लेकिन सो रहा था। मैं अपने घर पे ही था। आई वॉज एट होम, मैं सो रहा था। आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज, हाँ वहाँ पर इनका भी यूज कर सकते हो। आई वॉज इन माई होम, आई वॉज इन माई होम, मैं अपने घर पे था। एंड आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। ओके, समय क्या था? समय क्या था? समय क्या था? What was the time? What was the time? ये तो what time was it, दो तरीके हैं। What was the time बोलो। What was the time? What was the time, या तो what time is it, what time was it, what time was it। it को भी आप सब्जेक्ट बना सकते हो स्पेशली जब टाइम की बात करते हो। तो what was the time, ये तो what time was it। करीबन लगभग 2 बजे हुए थे। लगभग 2 बजे हुए थे। लगभग 2 बजे हुए थे। अब लगभग के लिए मैंने आपको वर्ड बताया था प्रीपोजिशंस पे। अब बताओ, लगभग 2 बजे हुए थे। बहुत बढ़िया। उसका मतलब शायद होता है, मैं लगभग की बात कर रहा हूँ। लगभग 2 बजे हुए थे। इट वॉज 2 o'clock। ओके, इट वॉज 2 o'clock, ये आपका नॉर्मल हो गया 2 बजे हुए थे, लेकिन लगभग 2 बजे हुए थे। वहाँ पर अबाउट और अराउंड ये 2 वर्ड मैंने बताया था जिसका मतलब होता है लगभग। अबाउट का मतलब के बारे में होता है, अबाउट का, अराउंड का मतलब चारों ओर होता है, लेकिन इन दोनों के एक और मतलब होते हैं कि लगभग के सेंस में, मतलब लगभग दोनों का मतलब होता है। अबाउट का भी मतलब होता है लगभग और अराउंड का भी मतलब होता है लगभग। तो इट वॉज अबाउट 2 o'clock। ओके, इट वॉज अबाउट 2 o'clock, लगभग 2 बजे थे। ये तो इट वॉज अराउंड 2 o'clock। यहाँ पर से इस तरीके से आप मूव कर सकते हो, प्रीपोजिशंस को जाकर अच्छे से रिवाइज कर लेना। इज दैट क्लियर? ओके, तो इट वाज अबाउट 2 o'clock या तो इट वाज अराउंड 2 o'clock। आगे मूव करते हैं। जब तुम्हारी बाइसिकल चोरी हुई, जब तुम्हारी बाइसिकल चोरी हुई तुम्हारे पापा कहाँ थे? When your bicycle, या where was your father, पास की बात हो रही है। जब तुम्हारी बाइसिकल चोरी हुई, when your bicycle was stolen, तुम्हारे पापा कहाँ थे? Where was your father? मेरे पापा अपनी कंपनी में काम कर रहे थे। मेरे पापा अपनी कंपनी, सॉरी अपनी कंपनी, हाँ अपनी भी कंपनी हो सकती है। मेरे पापा अपनी कंपनी में काम कर रहे थे। My father was working in his company. My father was working in his company. तुम्हें कैसे पता तुम्हारे पापा कंपनी में काम कर रहे थे? तुम्हें कैसे पता तुम्हारे पापा कंपनी में काम कर रहे थे? इन द कंपनी। हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता योर फादर वॉज वर्किंग इन द कंपनी? सोने से पहले, ओके, सोने से पहले मेरे पापा ने मुझे कॉल किया था। आई स्लेप्ट मतलब अपने बारे में, इससे बिफोर आई स्लेप्ट, मेरे सोने के पहले, बिफोर आई स्लेप्ट मेरे पापा ने मुझे कॉल किया था। माई फादर कॉल्ड मी, ये तो कॉल्ड मी अप। बिफोर आई स्लेप्ट, इसके पहले कि मैं सोया, माई फादर कॉल्ड मी अप, इसीलिए मुझे पता है मेरे पापा काम कर रहे थे। That's why I know my father was working. ओके, जिस समय तुम्हारी बाइसिकल चोरी हुई क्या घर पे कोई नहीं था? जिस समय तुम्हारी बाइसिकल चोरी हुई, द टाइम व्हेन, जिस दिन, द डे व्हेन, जिस समय, द टाइम व्हेन, तो जिस समय तुम्हारी बाइसिकल चोरी हुई, द टाइम व्हेन योर बाइसिकल वॉज स्टोलन। ओके, क्या घर पे कोई नहीं था? क्या घर पे कोई नहीं था? क्या घर पे, कम ऑन, घर पे कोई नहीं है, घर पे कोई नहीं था, घर पे कोई नहीं हो, कैसे बनाओगे? घर पे कोई है, इसको बताओ। घर पे कोई था, घर पे कोई था, कैसे बनेगा सेंटेंस? देयर वॉज समवन एट होम, ये होगा आपका नॉर्मल सेंटेंस। घर पे कोई था, देयर वॉज समवन एट होम। क्या घर पे कोई नहीं था? नेगेटिव में एनीवन आ जाएगा, यस और नो? वुड यू एग्री विद मी, यस और नो? क्लियर है ना? नेगेटिव में आपका क्वेश्चन में यानी चला जाता है। तो घर, क्या घर पे कोई नहीं था? वॉज देयर नॉट एनीवन, वॉज देयर नॉट एनीवन, वॉज देयर नॉट एनीवन एट होम, ये तो wasn't there anyone at home। ओके, ये हो गया। या तो इसको आप ये भी बोल सकते हो wasn't there anyone at home,
ऐसे भी आपका आ जाएगा। और यहाँ पर आप नॉट को शॉर्ट कर सकते हो, नॉट और एनी को। कहीं पर भी नॉट और एनी आ जाए, नो बन जाते हैं, तो आप ये भी बोल सकते हो वॉज देयर नो वन, वॉज देयर नो वन एट होम, वॉज देयर नो वन एट होम, क्या वहाँ कोई नहीं था? हाँ, घर पे कोई नहीं था। यस देयर वॉज नो वन एट होम, यस देयर वॉज नो वन एट होम, घर पे या डू हैव एनी? अरे बाबा देखो, कहीं पर भी नॉट प्लस एनी आ जाए, नॉट प्लस एनी आ जाए तो दोनों मिलकर नो बन जाते हैं। ये सुनो, अग्री करते हो? तो अगर आप यहाँ पर ये बोलते हो वॉज देयर नॉट एनी वन, वॉज देयर नॉट एनी वन, तो दोनों को जोड़ दो, बन जाएगा नो, तो वॉज देयर नो वन आ जाएगा। क्लियर है? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, वहाँ पर उससे मैंने शॉर्ट किया है। सो देयर आर मेनी वेज टू से सिंपल थिंग, आपको ये शायद करना है कि कौन सी आपके लिए इजी है। ओके, क्लियर है इतना? ओके, तुम्हारे घर पे कोई क्यों नहीं था? तुम्हारे घर पे कोई क्यों नहीं था? Anyone at home. Exactly. Why wasn't there anyone at your home? तुम्हारे घर पे कोई नहीं था। Actually उस दिन मेरे भाई का बर्थडे था। Actually उस दिन मेरे भाई का बर्थडे था। अरे दरअसल उस दिन मेरे भाई का बर्थडे था। अरे बाबा, एक्चुअली का मतलब वही है, एक्चुअली इंग्लिश का वर्ड है, अब उसको आप बिकॉज नहीं बोलोगे। ओके, एक्चुअली का मतलब होता है दरअसल। ओके, दरअसल उस दिन मेरे भाई का बर्थडे था। That day it was my brother's birthday. उस दिन मेरे भाई का बर्थडे था। It was my brother's birthday. और मेरे सभी फैमिली मेंबर्स बाहर सामान खरीदने के लिए गए थे। All my family members went out to buy. बाप रे, बहुत बढ़िया। मेरे परिवार के सभी सदस्य बाहर सामान खरीदने के लिए गए थे। ऑल माई फैमिली मेंबर्स वेंट आउट टू बाई और परचेज थिंग्स फॉर बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी के लिए। क्लियर है ना? ओके, एंड इसीलिए मेरे घर पे कोई नहीं था। एंड दैट्स वाई देयर वॉज नो वन एट होम, तो देयर वॉज नॉट एनी वन एट होम। इस तरीके से आप पर्टिकुलर स्टोरी को आगे बढ़ते जा सकते हो। यहाँ तो एग्जैक्टली शुरुआत हुई है ना। एक बार जब ऐसे संडेस आप बनाना चालू करोगे, आइडियाज आपके सामने आते चलेंगे और आप आगे मूव करते चलोगे। सो दिस इज द बेस्ट वे कि आप एक जगह बैठ जाओ और चालू कर दो नरेट करना स्टोरी। संडे से ना बने तो आराम संडे से लिख लो एग्जैक्टली बनाना कैसे, देन यू कैन मूव फर्दर। व्हाट टाइम इज इट बाय द वे? ओके, 3:30. Let's practice for 5 minutes. Let's practice some advanced level rule structures, and after that we are gonna be moving further. Okay, क्या तुम क्या कर रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम जा सकते हो? क्या तुम वो कर सकते हो जो मैं कर सकता हूँ? क्या तुम वो कर सकते हो जो मैं कर सकता हूँ? कैन यू डू वट आई कैन डू? जो के लिए वट का यूज करोगे। कैन यू डू वट आई कैन यू डू, सॉरी वट आई कैन डू। क्या तुम वहां जा सकते हो जहां मैं जा सकता हूँ? कैन यू गो वेयर आई कैन गो। क्या तुम तब डांस कर सकते हो जब मैं डांस कर सकता हूँ? कैन यू डांस व्हेन आई कैन डांस। क्या तुम तब डांस कर सकते हो जब मैं डांस कर सकता हूँ? तब और जब दोनों का मतलब हो जाएगा व्हेन, उसमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होता। तब के लिए क्या लगाना? कुछ नहीं लगाना, कॉमा लगाना। ओके, व्हेन आ जाएगा तो वो भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या तुम तब डांस कर सकते हो जब मैं डांस कर सकता हूँ? कैन यू डांस व्हेन आई कैन डांस। क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? क्या कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो मैं कर सकता हूँ? मतलब क्या तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो मैं कर सकता हूँ? मतलब क्या? जो सब कुछ मैं करूँगा वो सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। तो क्या तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो मैं कर सकता हूँ? कैन यू डू वट एवर आई कैन डू। वहाँ पर वट एवर चीज होगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। वट एवर, वट और वट एवर में क्या अंतर है? वट मीन्स होता है जो, और वट एवर मतलब जो कुछ भी। तो जो कुछ भी मतलब वो जो मैं कर सकता हूँ ना, थोड़ा पर कॉमन सेंस की जरूरत पड़ेगी, आ जाएगा। क्या तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो मैं कर सकता हूँ? कैन यू डू वट एवर आई कैन डू। क्या तुम वहाँ हर जगह, क्या तुम उन सभी जगह जा सकते हो जहाँ मैं जा सकता हूँ? कैन यू गो वेयर एवर आई कैन गो। तो इतने बड़े सेंटेंस के लिए आपको थोड़ा सा एक छोटा सा वर्ड आ जाएगा, कैन यू गो वेयर एवर आई कैन गो। मतलब क्या, जहां कहीं भी मैं जा सकता हूं, क्या तुम वहां जा सकते हो? ओके, जो कुछ भी क्या तुम भी पढ़ सकते हो जो कुछ भी मैं पढ़ सकता हूं? कैन यू रीड वट एवर आई कैन रीड। ओके, लेट्स मूव फर्दर। तुम मेरे भाई हो, इसलिए तुम्हें वहां जाना चाहिए। मैं अपने भाई की मदद करता हूँ। आई हेल्प माई ब्रदर। तुम्हें वहां जाना चाहिए। मुझे कहाँ जाना चाहिए था? वेयर शुड आई हैव गॉन। देयर का नहीं यूज करोगे क्योंकि वेयर इसी लगा रहे हैं। ओके, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए था? वेयर शुड आई हैव गॉन। मुझे कैसे जाना चाहिए था? मुझे क्यों जाना चाहिए था? मुझे क्यों टीवी देखना चाहिए था?
अगर तुम वहां जा सकते थे तुम्हें जाना चाहिए था। अगर तुम सुबह खाना खा सकते थे तो तुम्हें खाना खाना चाहिए था बाबा। If you could have eaten food in the morning, you should have eaten food. तुम्हें खाना खाना चाहिए था। Okay, by the way, one by one, you stand up, please. Let me check whether it's gonna be clearly visible or not. Actually, nothing is visible right now. Hang on. Okay, let it be. I'm not sure whether it's. Just be seated there. I'm not sure because on the mobile screen nothing is visible, so can't be sure. नहीं बंद नहीं हुआ, but कुछ दिख ही नहीं रहा. So when you stand up, I don't know whether you are properly visible there or not. Okay. By the way, maybe after this video, I'm gonna be giving you chances to speak as well. Okay. Right now आपको simply बैठ कर ही बोल देना. Clear? तैयार हो? मैं जा सकता हूँ? तुम कहाँ जा सकते हो? तुम कैसे जा सकते हो? तुम्हें जाना चाहिए. तुम्हें जरूर जाना चाहिए. तुम्हें जाना चाहिए. You should have मुझे gone. कहाँ जाना चाहिए? Where should I have क्या gone? तुम टीवी देखते हो? Are you watching TV? तुम मुझे कब से जानते हो? When you know, तुम मुझे कब से जानते हो? since when you, whenever you know. तुम मुझे कब से जानते हो? Say, हेलो वो क्या नाम से? Since when have you known me? Since when have you known me? कब से बारिश हो रही है? since when it was rain. Since when? When it is कब से बारिश हो रही है? when it is Since when is it raining? कब से बारिश हो रही है? since when it Hello? did. Since when has it rained? Since when has it been raining? अगर किसी भी सेंटेंस में टाइम लग जाता है तो पर्टिकुलर सेंटेंस परफेक्ट में जाकर बनता है, तो है तो लगेगा ही लगेगा। तो since when has it been raining? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? Can you help me? मुझे पता है कहाँ जाना है, I know where to go. मुझे पता है कैसे जाना है, I know how to go. I know how to go, मुझे पता है इंग्लिश कैसे बोलते हैं। I know how to speak English. तुम्हें जानना चाहिए लोगों से बात कैसे करते हैं। क्या? तुम्हें जानना चाहिए, You know. should You know तुम्हें जानना चाहिए, you should You know, know. तुम्हें जानना चाहिए लोगों से बात कैसे करते हैं। how to talk in people. How to talk to people. People. You should know how to talk to people. People. तुम्हें पता होना चाहिए कैसे तैरते हैं। You know how to swing. तुम्हें You पता होना you चाहिए। should you should know You should how know. know how to swing. You should know how to swim. तुम्हें पता होना चाहिए इंग्लिश कैसे बोलते हैं। You should know how to speak English. तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। Whenever you want तुम to जब stay. तक चाहो यहाँ रह सकते हो। Whatever. As long as you want, you can stay here. Okay, तुम जब तक चाहो as long as you want, तुम यहाँ रह सकते हो, you can stay here. Okay, जब तक तुम नहीं जाओगे मैं भी नहीं जाऊँगा। जब तक as long as you जब want तक to. तुम नहीं जाओगे, जब तक तुम नहीं जाओगे मैं भी नहीं जाऊँगा। When Until you go, I will not go. Okay. By the way, thank you very much Unstoppable, especially as far as you guys are considered. I'm gonna be giving you chance to narrate the story. Especially as she is gonna be given the chance, and at the end of the class, I have to get some other things done. Okay. So maybe if not today, so tomorrow you will get the chance, and maybe before him. Okay. So thank you very much Unstoppable for watching this video. I will see you in the next video. Until then, keep up the good work and beam. I am unstoppable. Thank you very much.